بغداد کا پرانا شہر اس وقت سردیوں کی خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، مگر بازار کی گلیاں جاگنے لگی تھیں۔ مٹی کی دیواروں پر اوس کی تہ تھی اور گلی کے موڑ پر ایک جھونپڑی سے دھواں نکل رہا تھا۔ اسی جھونپڑی میں رہتا تھا ربیع، ایک 55 سال کا محنتی مزدور، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر جھریاں اتنی گہری تھیں جیسے وقت نے خود ہاتھ سے کاٹ کاٹ کر نقش چھوڑے۔ ربیع ہر صبح جلدی جاگتا، ایک پرانی بوری میں رسو، ہتھوڑا اور لوہے کے کیل رکھتا اور اللہ کا نام لے کر نکل پڑتا۔ کام کبھی ملتا، کبھی نہیں۔ کبھی خلیفہ کی عمارت کے پتھر الفاٹینی پڑتے، کبھی بازار کے پل پر لکڑی بچھانی پڑتی۔ اس دن بھی وہ طلوع آفتاب سے پہلے بازار پہنچا، مگر سب دکانیں بند تھیں۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب کام کی کوئی امید نہ بنی تو اس نے زمین پر نظر جھکائی اور کہا، اے اللہ، آج اگر کسی نے کام نہ دیا تو میں پھر بھی تیرا شکر ادا کروں گا، کیونکہ میرا رزق بندوں کے ہاتھ میں نہیں، تیرے ہاتھ میں ہے۔ اسی وقت قریب سے ایک گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ خلیفہ کے محل سے آنے والا ایک خادم تھا۔ اس کے چہرے پر جلدی کا تاثر تھا۔ کیا تم مزدور ہو؟ ربیع نے سر ہلایا۔ فوراً میرے ساتھ چلو، محل کی دیوار میں ایک جگہ بیٹھ گئی ہے اور ہمیں ایسا شخص چاہیے جو زبان کم اور کام زیادہ کرے۔ ربیع نے اللہ کا شکر ادا کیا، بوری الفاٹی اور ساتھ ہو لیا۔ محل کی ایک دیوار واقعی بیٹھ چکی تھی۔ اسے سہارا دینا ضروری تھا، ورنہ گرنے کا خدشہ تھا۔ محل کا انچارج بار بار چیخ رہا تھا، اسے جلدی درست کرو، کل خلیفہ یہاں سے گزرے گا۔ ربیع خاموشی سے کام میں لگ گیا۔ دیوار کے نیچے گارا لگایا، پتھر برابر کیے اور سورج ڈھلنے سے پہلے ایک جانب کا حصہ سنوار دیا۔ جب کام مکمل ہوا تو خادم نے جیب سے کچھ سکے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ 3 دینار، جو اس دن کے لحاظ سے کافی تھے، مگر ربیع کے چہرے پر وہ خوشی نہیں آئی جو عام طور پر مزدور کو اجرت پر آتی ہے، بلکہ اس نے سر جھکا کر کہا، میری الفاجرت تو صبح اس وقت طے ہو گئی تھی جب میں نے زمین پر بیٹھ کر صرف ایک دعا کی تھی۔ یہ دینار اس دعا کے بعد آئے ہیں۔ اصل رزق تو سکون ہے جو سارا دن میرے دل میں رہا۔ خادم نے حیرت سے اسے دیکھا اور صرف اتنا بولا، تم عجیب شخص ہو، مگر تم جیسے لوگ ہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ کہ ربیع نے مسکرا کر بوری الفاٹی آئی اور خالی گلی کی طرف واپس چل پڑا۔ اگلے دن بغداد کا آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، فضا میں خنکی تھی اور بازار کی گلیاں کچھ زیادہ خاموش لگ رہی تھیں۔ ربیع ہمیشہ کی طرح صبح سویرے بیدار ہوا، اپنی بوری تیار کی، مٹکا بھرا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ مگر آج اس کے دل میں کچھ مختلف سا سکون تھا۔ شاید کل کی دعا نے اندر کچھ بدل دیا تھا، شاید اللہ سے جڑا یقین اندر کچھ مضبوط کر گیا تھا۔ وہ بازار کے پرانے گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزر گئی، مگر آج کسی نے آواز نہیں دی۔ نہ کوئی سامان الفاٹنی کا کہا، نہ کسی خادم نے بلایا۔ یونس نے ہاتھوں کی انگلیاں جوڑیں اور خاموشی سے زمین کو تکنے لگا۔ ایک نوجوان مزدور قریب آیا اور بولا، بابا جی، آج کچھ ملا؟ ربیع نے ہلکے لہجے میں جواب دیا، نہیں، مگر فکر کی بات نہیں۔ جب رب خالی بھیجتا ہے تو کچھ بھرا ہوا لے جانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ نوجوان ہنس پڑا، جیسے یہ بات اسے غیر معمولی لگی ہو، اور چلتا بنا۔ اسی لمحے ایک بھاری گاڑی بازار کے کونے سے گزری، جس میں قیمتی لکڑی، رنگین پاریچت اور کپڑوں کے تھان لدے ہوئے تھے۔ اس گاڑی کے پیچھے ایک عمر رسیدہ تاجر چیخ رہا تھا، اوہ، یہ تو نیچے سے ٹوٹ رہا ہے، کوئی ہے جو اس کا وزن درست کرے، کہیں سارا مال خراب نہ ہو جائے۔ کئی مزدوروں نے سنا مگر آگے نہ بڑھے، کیونکہ گاڑی کے نیچے جانا خطرناک تھا اور لکڑی اتنی بھاری تھی کہ ہاتھ میں چوٹ آ سکتی تھی۔ ربیع نے چپ چاپ اپنی بوری الفاٹی اور آہستہ آہستہ اس گاڑی کی طرف چل پڑا۔ تاجر نے اسے دیکھ کر پوچھا، تم یہ کام کر سکتے ہو؟ ربیع نے کہا، کوشش کروں گا، باقی مالک کی مدد پر ہے۔ اس نے لکڑی کے نیچے پتھروں سے سہارے بنائے، رسو سے گاڑی کو دوبارہ باندھا اور کیچڑ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ زاویہ درست کیا جہاں سے پہیا ہٹ رہا تھا۔
सारा काम खामोशी से किया, ना बढ़ाई दिखाई ना शको किया। जब काम मुकम्मल हुआ, ताजिर ने जेब से 5 दीनार निकाले और रबी की तरफ बढ़ाए। रबी ने दीनार पकड़े, धूप की तरफ देखा और कहा, रिज्क अल्लाह ने दिया, अब तो सिर्फ वसीला बने हैं। ताजिर ने हैरत से इसे देखा, फिर पूछा, तुम इतना मुतमईन कैसे हो? ना घर, ना जमीन, ना सोने के सके। फिर भी शुक्र। रबी मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, अल्लाह की रजा मिल जाए तो बाकी सब चीजें इसकी तरफ से नेमत बन जाती है, और अगर रजा ना हो तो दीनार भी बोझ लगते हैं। ताजिर खामोश हो गया और इसे जाता देखता रहा। कंधे पर बोरी, दिल में सुकून और कदमों में वो नरमी जो सिर्फ ईमान वालों में होती। इस दिन के बाद रबी की जिंदगी में कुछ बदला नहीं। ना कपड़े नए हुए, ना झोंपड़ी पकी बनी, ना दीवारों से सीलन गई, ना रोजी की रफ्तार बढ़ी, लेकिन एक चीज वाज़ेह हो गई, इसके दिल में इत्मीनान और चेहरे पर रोशनी आ गई थी। अब वो जब बाजार पहुंचता तो लोग इसे अजीब सी नजर से देखते। ना तरस, ना हसद, बल्कि वो नजर जो किसी ऐसे पर पड़ती है जो सब कुछ पा चुका हो, हालांकि इसके पास कुछ भी ना हो। मगर आजमाइशें हर ईमान वाले का पता लेती है। 3 दिन बाद की बात है, मगरिब के वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। बाजार के अक्सर दुकानदार अपनी चीजें समेटने लगे। रबी एक खिली जगह पर खड़ा था जब अचानक करीबी नाली बंद हो गई और पानी का रेला एक दुकान के अंदर घुसने लगा। वो दुकान खलीफा के दरबारी मुआलिज की थी, जिसमें कीमती जड़ी बूटियां, दवाइयां और नादिर शीशियां रखी थीं। लोगों ने जोर जोर से पुकारा, कोई है जो अंदर जाकर चीजें निकाले, बारिश रुकने तक सब बह जाएगा। सब मजदूर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर पानी इतना तेज था कि कोई हिम्मत ना कर सका। तब रबी ने अपनी चादर लपेटी, बोरी एक तरफ रखी और बगैर कुछ बोले पानी में आतर गया। दुकान के अंदर कमर तक पानी था, मगर रबी ने जल्दी जल्दी कीमती शीशियां, कागजात और लकड़ी के बॉक्स बाहर निकालने शुरू कर दिए। बाहर लोग हैरत से देख रहे थे। एक झुर्रियों वाला थका हारा मजदूर, जिसकी जेब में दीनार नहीं, मगर दिल में यकीन की वो रोशनी थी जो पानी की तेजी को भी पिघला देती। जब काम मुकम्मल हुआ तो मुआलिज खुद आया, भीगा हुआ, घबराया हुआ, मगर जब रबी के हाथों में अपनी कीमती दवा की बोतलें देखें तो इसकी आंखों में हैरत और तशक्कुर दोनों आ गए। क्या मांगोगे? जो मांगोगे दूंगा। तो रबी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सर हिलाया और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब अगली बार किसी गरीब को दवा मुफ्त दे देना और अल्लाह से कह देना। रबी ने बगैर कीमत के मदद की है। लोग सुनकर चौंक गए। कोई इतना मुतमईन कैसे हो सकता है, इतना बेनियाज? उस वक्त जब सब महंगाई का रोना रोते हैं, यह शख्स बगैर सिला दिए भी मुतमईन है। मुआलिज ने इसके हाथ पकड़े और कहा, अल्लाह तेरे लिए दरवाजे खोलेगा जहां कोई दरबान नहीं होगा, और जो रिस्क आएगा इसे दुनिया की गिनती से ना नापा जाएगा। रबी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ हाथ छुड़ाया और चल पड़ा, मगर इसके पीछे जो कदमों के निशान थे वो सिर्फ कीचड़ में नहीं, लोगों के दिलों में भी सख्त हो चुके थे। बारिश खत्म हो चुकी थी, लेकिन बगदाद की गलियां अब भी पानी से तर थीं। आसमान पर हल्के बादल बिखरे हुए थे और हवा में मिट्टी, गीली लकड़ी और गारा मिला हुआ सा एक मखसूस सुकून छाया था। रबी इस दिन के बाद मामूल के मुताबिक बाजार आता, मगर अब लोग इसे सिर्फ मजदूर नहीं समझते थे। बाजार की गलियों में इसका नाम खामोशी से इज्जत बन चुका था। जब वो गुजरता तो बाज दुकानदार सलाम करते, कुछ मजदूर नजरें झुकाते और चंद लोग सरगोशी में कहते, ये वही है ना जिसने दवाइयों की दुकान बचाई थी? हाँ, वही जिसने कुछ मांगा नहीं, बस शुक्र किया। मगर रबी इन बातों से गाफिल रहता। ना उसके कदम बदलते, ना आदत। अलबत्ता इसके दिल में एक नरमी सी बढ़ती जा रही थी। वो दिन में थोड़ी देर बैठकर आसमान को देखता और कभी कभी खामोशी से मुस्कुरा दिया करता। एक दिन जब बाजार कदरे खाली था, एक अजनबी शख्स रबी के पास आया। चेहरे पर रेशमी कपड़ा लिपटा हुआ, आंखों में थकन, मगर लिबास साफ सुथरा। उसने रबी को सलाम किया और कहा, मैं मुसाफिर हूं, शहर में किसी पर भरोसा नहीं,
क्या तुम मेरे लिए एक दिन की मजदूरी कर सकते हो? एक पुराना घर है, इसे साफ करना है। मुआवजा अच्छा दूंगा। रबी ने चेहरा बुलंद किया, सरापा देखा और सिर्फ इतना पूछा, अब कहां से आए हैं? कूफा से। तिजारत की गरज से आया हूं, मगर तबीयत कमजोर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रबी ने सर हिलाया और कहा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस नियत साफ हो तो हाथ नहीं थकता। मुसाफिर ने खुश होकर अपना पता दिया, जो शहर के एक पुराने इलाके में था, जहां खस्ता हाल मकानात, खामोश गलियां और झाड़ियों से भरे आंगन थे। रबी अगले दिन वक्त पर वहां पहुंच गया। घर वाकई पुराना था, दर व दीवार बोसीदा, दरवाजा चरचुराता हुआ और सहन में खुश्क पत्तों का ढेर। रबी ने बगैर कोई सवाल किए झाड़ू अलिफाटे आलिफ, दीवारें साफ की, मिट्टी निकाली और आंगन को यूं चमका दिया जैसे नई जिंदगी दे दी हो। दोपहर तक सारा काम मुकम्मल हुआ। मुसाफिर ने इसके सामने कपड़े की एक थैली रखी जो काफी वजनी थी। ये तुम्हारी मजदूरी है, मैंने कहा था मुआवजा अच्छा दूंगा। रबी ने थैली उठाई मगर इसे फौरन खोला नहीं। मुसाफिर ने हैरानी से पूछा, क्या देखोगे नहीं? कितना दिया है? रबी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मालूम है अल्लाह कमी नहीं करता, और जिसकी नियत में खुलूस हो इसका वदा भी सच्चा होता है। ये सुनकर मुसाफिर की आंखों में नमी आ गई। वो आगे बढ़ा और कहा, मैं ताजिर नहीं, आजमाइश में डूबा एक आदमी हूं। मैंने 3 दिन से किसी पर भरोसा न किया, सोचा जिसके चेहरे पर सुकून हो उसी को आजमाओ, और तुमने न सिर्फ मेरे घर को साफ किया बल्कि मेरे दिल से खौफ भी धो दिया। रबी ने खामोशी से थैली को अपने मटके में रखा, चादर ओढ़ी और चल पड़ा। रास्ते में उसने थैली खोली, इसमें 10 दीनार थे और एक छोटा सा पर्चा। पर्चे पर सिर्फ इतना लिखा था, सच्चाई, ईमान और खिदमत, ये 3 चीजें अल्लाह को बहुत पसंद हैं, और तुम में ये तीनों जमा हैं। कि रबी ने वो पर्चा अपनी चादर में लपेट लिया। वो दीनार कीमती थे मगर वो अल्फाज उसके लिए खजाने से बढ़कर थे। इस दिन के बाद रबी का मामूल पहले जैसा ही रहा, न उसने दीनार गिने, न किसी को बताया कि इस पर्चा में क्या लिखा था। बस इस पर्चे को अपनी चादर के अंदर ऐसे रख लिया जैसे वो कोई राज हो, कोई दुआ। बाजार में अब भी वही मजदूरी करता, मगर जो बदल चुका था वो लोगों का रवैया था। कुछ लोग इससे काम लेने आते, कुछ सिर्फ इससे बात करने के लिए बैठते, और चंद तो महज इसे खामोशी से देखते, जैसे इसके चेहरे पर कोई ऐसी रोशनी हो जो दिल को नर्म कर देती हो। लेकिन इम्तिहान का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। एक दिन बगदाद में खबर फैली कि खलीफा के महल में एक खजाने की गिनती कम हो गई है। महल के अंदर काम करने वाले कई मजदूर जेरे तफ्तीश थे, और उनमें एक रबी का पुराना साथी भी शामिल था, जमाल, जो कई सालों से महल में काम करता था। रबी को जैसे ही ये बात मालूम हुई, वो फौरन महल की तरफ रवाना हो गया। महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे और अंदर शोर बरपा था। रबी ने एक गार्ड से कहा, मैं जमाल के बारे में बात करना चाहता हूं। गार्ड ने हिकारत से कहा, सब मुजरिम यही कहते हैं कि दोस्त बेगुनाह है। रबी ने नरमी से जवाब दिया, अगर तुम्हारी जगह जमाल होता तो वो भी मेरे लिए यही कहता। महल के इंचार्ज ने इजाजत दी, रबी को अंदर बुलाया गया। खलीफा के मुशीर ने पूछा, क्या तुम गवाही दे सकते हो कि जमाल चोर नहीं? रबी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैंने जमाल को कभी झूठ बोलते नहीं सुना, और जिसकी जबान सच्ची हो उसका हाथ कभी खयानत नहीं करता। मुशीर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद खजाने के एक कोने में पड़ी थैली से चंद सके निकले, जिन पर किसी दूसरे इलाके की मेहर थी, यानी वो सके खजाने के ना थे बल्कि किसी और जगह से लाए गए थे। ये बात वाज़ेह हो गई कि किसी ने जानबूझकर जमाल पर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी। खलीफा ने हुक्म दिया कि तमाम मजदूरों से दोबारा तफ्तीश की जाए, मगर रबी को महल में एक दिन के लिए काम पर रखा जाए। और जब रबी ने दूसरे दिन काम मुकम्मल किया तो खलीफा ने इसे अलग से बुलाया और पूछा, तुमसे लोग क्यों इतना मुतासिर होते हैं? रबी ने जवाब दिया, शायद इसलिए कि मैं सवाल नहीं करता। मैं जो काम करता हूं इसमें अल्लाह की रजा ढूंढता हूं, और जिससे अल्लाह राजी हो इसे लोगों के दिल भी कबूल कर लेते हैं।
खलीफा ने इसे देखते हुए कहा, अगर हर मजदूर तुम जैसा हो तो शायद खलीफा को फौज नहीं सिर्फ दुआ की जरूरत हो। रबी ने कुछ न कहा, बस नजरें झुकाकर वही पुरानी बोरी अलिफाटे आई, चादर लपेटी और चुपचाप बाहर निकल गया। लोग समझते थे कि वो सिर्फ मजदूर है, लेकिन वो जानते नहीं थे कि वो हर दिन अल्लाह की रजा का खामोश नुमाइंदा बनकर बाजार में उतरता है। बगदाद की हवाएं अब नरम हो चुकी थीं। खज़ां की हुआ दरख्तों से जर्द पत्ते गिरा रही थी और बाजार के दुकानदार अपने कपड़े समेट कर दुकानें बंद कर रहे थे। ऐसे में रबी की जिंदगी वैसे ही सादा थी, न शोहरत की ख्वाहिश, न इज्जत का गुरूर, बस दिल में इत्मीनान, चेहरे पर साकौन और कदमों में यकीन। लेकिन एक शाम जब वो अपने पुराने रास्ते से झोंपड़ी की तरफ वापस जा रहा था, अचानक इसे एक हुजूम नजर आया। लोग किसी बात पर जमा थे, चेहरे फिक्रमंद और आवाजें बेचैन। रबी आगे बढ़ा तो देखा कि एक मासूम लड़का 14-15 साल का बाजार के बीच में खड़ा कांप रहा था। इस पर इल्जाम था कि उसने खलीफा के बेटे की अंगूठी चुराई है। लोग चीख रहे थे, सजा दो, चूर है, महल से चीज चराई है, मुआफी नहीं होनी चाहिए। लड़के की आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। उसने बार बार कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हुजूम फैसला कर चुका था। इसी लम्हे रबी आगे बढ़ा, लोगों को एक नजर देखा और खामोशी से लड़के के करीब गया। बेटा, तुमने नहीं किया, ये तुम्हें कैसे यकीन है? लड़का बोला, अल्लाह देख रहा था। जब अंगूठी गिरी, मैंने इसे अलिफाटे कर गार्ड को वापस दे दी थी, मगर वो इनकार कर रहा है। रबी ने इस गार्ड की तरफ देखा जो महल की वर्दी में था, मगर नजरें चरा रहा। रबी ने बुलंद आवाज में कहा, क्या खलीफा के महल में इंसाफ भी वर्दी पर होता है? अगर इल्जाम से पहले सुनवाई ना हो तो इंसाफ सिर्फ हुजूम का नारा बन जाता है। लोग खामोश हो गए। तब रबी ने गार्ड से कहा, अगर अंगूठी तुम्हारी पास हो और तुमने सच ना बोला तो कल तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, और अगर लड़का झूठा है तो अल्लाह खुद इसे जाहिर करेगा। गार्ड की रंगत अलिफाड़ गई। चंद लम्हे बाद इसने जेब से अंगूठी निकाली और लरसते हाथों से वापस की। हुजूम सुन हो गया। किसी ने ना शोर किया, ना तालियां बजीं। बस एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे लोगों के ज़मीर ने एक लम्हे को सांस रोका हो। खलीफा को यह खबर पहुंची और उसने फौरन रबी को महल में बुलाया। हमने तुम्हारा नाम सुना है, मगर आज तुम्हारा किरदार भी देख लिया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रबी ने सर झुकाया और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि अब के महल के दरवाजे इंसाफ के लिए खिले रहें और दरवाजे के बाहर भी वही रोशनी हो जो अंदर है। खलीफा ने कुछ लम्हे खामोशी से इसे देखा, फिर कहा, तुम बगदाद के खादिम नहीं, बगदाद के ज़मीर हो। इसके बाद रबी वापस बाजार की तरफ चला गया, इसी पुरानी चादर, बोरी और मटके के साथ। मगर लोगों की नजरों में अब वो सिर्फ मजदूर नहीं था, वो था जिसका अल्लाह पर यकीन दूसरों के ईमान को जगा गया। और यूं रबी, जो कभी साए में काम करता था, एक दिन बगदाद के आसमान पर वो सितारा बन गया जिसे लोग कहानियों में याद रखने लगे। सच्चाई, खुलूस और अल्लाह पर यकीन अगर दिल में हो तो कमजोर इंसान भी बड़े फैसलों का जरिया बन जाता है। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।